Good morning, everyone. It is our pleasure to have with us Dr. Dayaram. Sir is professor and head and mushroom scientist uh, from faculties of Basic Science and Humanities, Dr. Rajendra Prasad, Central Agriculture University. And the topic chosen for deliberation by Sir is pipe method of button mushroom compost production. सर यू आर ऑडिबल एज वेल एज विजिबल. आप दिखाई भी दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं और आपकी प्रेजेंटेशन भी दिखाई दे रही है. सर आप शुरू कर सकते हैं, प्लीज शुरू कीजिए. Thank you. Good morning to all. Dear organizers, particularly Dr. Thakur, I'm thankful to all of you for inviting me for this important technology, dissemination of the mushroom production technology among youth. And thanks to uh, all committee members and director of your institute and dear participants. As you know that the time is very crucial and during the COVID period, हेलो सर, ऑडियो नहीं आ रही है सर. Hello, sir.
सर साउंड नहीं है, ऑडिबल नहीं है। Just give me 5 minutes. I will ask, sir. क्या हुआ? शॉर्टकट को दोनों जगह लॉक कर दिया है। यहाँ मिला नहीं। हेलो, प्लीज स्टार्ट सर। ओके, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। स्लाइड दिख रहा है? यस सर, यस सर। Okay, thank you. Now you see the challenge. How can we deliberate the challenge? Now the point is, खेती बिना खेत के means we should start the cultivation where no land is required. Land means that is cultivated land, vertical farming or vertical farming. Short duration crop under different temperature regimes. So mushroom is totally fit in this challenge deliberation. Now you see the cultivated mushroom variety. You see oyster, button, milky, shiitake, hericium, padistra. Many types of mushroom can be cultivated in different temperature regime under natural condition. And you may have seen that state specific is there. Some area the oyster is prominent, in some area button, and button is cultivated mostly in winter. So you have a broad opportunity to utilize the huge amount of agro waste as well as the population, the population are who are migrated. So we can सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। आ रही है सर। प्लीज कंटिन्यू। एक मिनट। Sir, can you also hide the notification below? Can you click Now- on the hide sir? बस thank you. Yes Hide. perfect sir. Okay. Yes हो गया सर वो। Yes thank you sir. Please start. Now we have, if you see all this, you will find there that खेती बिना खेत का. Earlier or in this topic you see, our focus is only production. We produce, but that is not like that. We have the potentiality not only in cultivation, but span production is one of the major component. Another one is a compost production, compost you see. Another one is a product development and marketing. These 5 areas of mushroom production technology we have identified, and it has the opportunity to deliberate all the challenges which we have mentioned in the first slide. Now button mushroom, you see button mushroom cultivation, because many learned people are will also
deliver their lectures. Many things they will cover and may be covered. Crop period, normally October to March, but in many places this period may be vary. Temperature requirement is a perfect. Temperature range 20 to 25 for span run and case run. Sometimes this temperature 20 to 24 you can 23. Now temperature range for crop production, that is a 15 to 20 degrees Celsius. Time, these are the and I think many things you all are well aware. Time for case run, pinhead formation. Now, what are the aspects? Compost production, spawning, casing, crop management, harvesting, and packaging and marketing. These are the major issues or major activities. Now, many formula are there. Many scientists Admin, please mute everyone except the speaker. हाँ, आवाज जा रही है? जी सर, जी सर। हाँ, तो कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं हिंदी में बोलने के लिए, क्या है? सर ये कौन है? सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए, इग्नोर दीज मैसेजेस। Most of the participants don't understand Hindi. We have already conveyed, even in the future it is written that the session will go in the English. Sir, please continue. Daya, sir. हेलो, क्या बोल? सर थोड़ा हिंदी में बताने की कोशिश हाँ, करें। ओके, हिंदी में बताते हैं, चलिए। तो ये सारी चीजें आपको डिपेंड्स, आपको जो अवेलेबल है। इसमें हम पाइप मेथड से बनाएंगे तो 10 पाइप हमको चाहिए। अब ये कंपोस्ट बनाने के जो तरीके हैं, इसमें लंबी अवधि है, इसके बाद में ये पाइप मेथड है। पाइप मेथड में और आप जो भी फार्मूला अडॉप्ट करें, बट मोस्टली पैडिस्ट्रा या फीटिस्ट्रा आप इस्तेमाल करते हैं और कर भी रहे हैं। बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन फीटिस्ट्रा बहुत आसानी से Hello sir, please yeah speak in English, sir. We could not understand Hindi. okay, somebody Please is in asking for English. Okay, now pedistra, you say the pedistra, जी सर जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसे। नहीं, हम दोनों में कंफर्टेबल है। मेन हमारे से नहीं है, समझने वालों के लिए जरूरी है कि वो बढ़िया से समझें। तो चलिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में मैं कवर करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक बार जो है थोड़ा सा इंग्लिश में बता के उसको रिपीट करता हूँ। एज यू नो दैट पाइप मेथड ऑफ कंपोस्टिंग इज वेरी चीपर देन अदर मेथड्स। मतलब ये बहुत सस्ता होता है, बहुत आसान होता है। इसको मैं हिंदी में बता देता हूँ, फिर अंग्रेजी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
जैसे आप 10 कुंटल भूसा लेते हैं, तो 10 कुंटल भूसा आपने लिया, 10 कुंटल का मतलब हो गया। इसके बाद उसे बढ़िया सा पानी में फुलाते हैं। द 10 कुंटल एक्स्ट्रा इज वाटर सोक्ड फॉर एट लीस्ट 2 डेज, क्योंकि वो बढ़िया सा फूल जाए, बढ़िया सा वाटर सोक्ड हो जाए। इसके बाद में थर्ड डे जो है हम सभी उसमें इंग्रेडिएंट्स मिला देते हैं। जैसे आपको है जिप्सम है, ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट्स व्हाट इज रिकमेंडेड, मैंने सभी इंग्रेडिएंट्स, यूरिया है, जिप्सम है, बाकी मुर्गी का खाद है, अगर वो नहीं मिलता है तो केक है, ऑल दीज थिंग्स आर मिक्स टुगेदर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्लाइड जो है, पहली स्लाइड में आप यहाँ दिख रहा है कि मिक्सिंग, यहाँ देखिए सब मिला रहे हैं, ये देखिए। तो इसको हाथ से बढ़िया सा मिला लेते हैं। इसके बाद में इसमें हम करते क्या है कि मिला करके रख देते हैं, फिर हम इसका स्टैकिंग करते हैं, थोक लगाते हैं। थोक कैसे लगाते हैं कि पहले हम 2 फीट ऊंचाई और 20 फीट लंबाई में हम उसको भूसा को 7 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा वो मैं फैला देता हूं और 2 फीट ऊंचा। इसके बाद में 3 पाइप रखते हैं। देखें यहाँ पर पाइप रखी हुई है, 1 पाइप है, 2 है, 3 है इसके ऊपर, और 2 फीट फिर हम इसके ऊपर भूसा का मिक्सचर रख देते हैं। मतलब फर्स्ट इन द फर्स्ट लेयर 2 फीट हाइट stacking of your mixture and put the pipes. The pipe is perforated 10 feet long and 4 inch wide, यानी 10 फीट लंबा 1 पाइप होगा, 20 फीट 2 पाइप लगेगा। उसके अंतर्गत पॉइंट मतलब आधा इंच का उसमें छेदा होता है, और इसके बाद में उसमें हर 4 अंगुल पे छेदा किया जाता है। परफोरेटेड पाइप, आपको यहाँ पर मैं अभी वीडियो कॉल के जरिए भी मैं परफोरेटेड पाइप को दिखाऊंगा कि पाइप कैसे होना चाहिए। तो इसके बाद सेकंड लेयर वी शुड पुट द 2 फीट हाइट, यानी ये 2 फीट यहाँ पर जो स्लाइड देख रहे हैं, यहाँ पर भूसा जो मिक्सचर है उस पे स्टैकिंग कर देते हैं, माने उसको फैला देते हैं। और इसके बाद तीसरी बार उसके पाइप रखते हैं। अब आप देख रहे हैं कि दूसरी पाइप रखी है। 2 पाइप्स आर पुट टुगेदर एट इट्स सेम डिस्टेंस। फिर से हम उस पे 2 फीट फिर हम यहाँ पर लगाते हैं, और जैसा यहाँ पर देख लीजिए, ये है, यहाँ 2 पाइप है और यहाँ पर 1 पाइप है। तो ये लास्ट में आपको 1 पाइप यहाँ पर एक डिफरेंट है, पाइलिंग है ये करके, और लास्ट में इस तरह से आप पाइप बढ़ा सकते हैं। क्या है कि समटाइम्स वी want to prepare the compost more than 10 or 20 quintals, so number of pipes increase। कई बार हम क्या करते हैं कि हम पाइप जो, हमें तो खाद बनाना ज्यादा मात्रा में, इस विधि से खाद जो है कम समय में बन जाती है। इस विधि में कम माने 15 दिन में खाद बन जाती है, 15 दिन से 18 दिन में खाद बनती है, सबसे कम समय का है। और इसमें 2 मतलब टोटल 3 पलटाई होती है और कम लेबर लगता है। तो आप देख रहे हैं कि ये दूसरी लेयर यहाँ लग गई है, और इसी तरह से कंप्लीट पाइलिंग हो जाती है। अब छठे दिन हमारा पलटाई होगा। तो व्हाट हैपेंड, fourth day we open the mouth of the dish, and after complete piling we covered like this, we covered with the polythene so that the leakage
is not required. Otherwise, there is no quality compost. On 4th day, you see, माने कि हम जब स्टैकिंग कर लेते हैं, ये थोक लगा देते हैं, तो उसको चारों ओर से हम इसको ढक देते हैं। इसको ऐसा ढकते हैं कि एकदम कहीं से गैस नहीं निकलना चाहिए, एकदम सील्ड होना चाहिए। इसके बाद चौथे दिन हम इस तरह से दोनों तरफ से मुंह को खोल देते हैं। चौथे दिन इस तरह से पाइप का मुंह खोल देते हैं, दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। एंड व्हेन वी कवर्ड विथ द polythene or tirpal, the temperature must rise up to 65 to 70 डिग्री सेल्सियस। सो इसका टेम्परेचर 60 से 70, 65 से 70 होना चाहिए, और होता है इसको जब आप बढ़िया से करेंगे। बट 65, 70, 62 ये फिजिबल होता है। ऑन 4th डे माने चौथे दिन इसके मुंह को हम खोल देते हैं। या देखा आपने खोला है, इसको खोल देते हैं। इसका एक प्रॉपर ठंडा होता है 5वें दिन, और 6ठे दिन पहली पलटाई होती है। पलटाई ऑन 6th डे फर्स्ट टर्निंग इज रिक्वायर्ड। तो आपने देखा कि कैसे टर्निंग करते हैं। इसको हम एक जगह से दूसरे जगह, फोटो में दिख रहा है, हम इसको टर्निंग कर रहे हैं। और 6ठे दिन फिर हम टर्निंग करके इसको पलटाई कर, माने पाइप निकाल के, वी रिमूव द पाइप and one turning is done, then again same procedure follow to prepare the stack. Now 6th day, on 6th day we again prepare like this. Now 9th day, again 9th day we open the both side, the mouth of the pipe. 9वें दिन दोनों तरफ पाइप को हम खोल देते हैं, और 10वें दिन तक खुला रहता है। देन 11th डे, 11वें दिन हम जो है इसको पलटाई करते हैं, दूसरी पलटाई करते हैं। इसके बाद में ये खाद हमारी तैयार हो जाती है लगभग 11 दिन, और 11वें दिन से हम इसको ठंडा करते हैं, और 11 से 13 दिन में मुंह को खुला छोड़ देते हैं दोनों तरफ, और ये खाद ठंडी होती है। इसका जो अमोनिया है निकल जाता है। ऑन 11 to 13th day the pipe mouth is open and by both side, so that the ammonia removed from that, and on 15th, 16th, on 18th day or after 15th day onwards cooling and spawning, तो हम इसको स्पानिंग करते हैं। अब इसके खाद की जांच करते हैं। हाउ वी कैन एनालाइज और how can we say that this is a quality? The color is dark tan. उसका कलर जो होता है डार्क टैन होना चाहिए, चिपचिपा नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग spawning the moisture level must be 60 to 65, in between 60 minimum, maximum 65 temperature must moisture level must be maintained. And if you smell, there is no ammonia related smell, and there is a sweet aroma come out from this compost. Now we should understand that is our compost is ready for spawning. इसमें उसके बाद में फिर हम लोग उसमें बुवाई करते हैं। उसकी बुवाई करने के पश्चात में जो यूजुअल मेथड है उस चीज को हम करते हैं। तो इसमें कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, क्वालिटी कंपोस्ट और लेबर। जैसे अगर आप लंबी अवधि में कंपोस्ट बनाते हैं तो इट टेक्स, अगर आप 100 क्विंटल बनाते हैं तो लगभग 40 to 50 मैन पावर की आवश्यकता होती है। बट अगर आप 100 क्विंटल भूसा या एक्स्ट्रा यूज करते हैं तो
इस विधि में 40 मैन पावर लगेगा। दूसरी चीज है कि यह खाद, दिस कंपोस्ट इज prepared within 15 to you can say on an average 18 days, मैंने 18 दिन में इसकी खाद एकदम तैयार होती है। इसकी क्वालिटी जो है, ये जो टनल मेथड है उसके एट पार होती है, उसके बराबर होती है। तो ये दिस मेथड इज वेरी मच यूजफुल। ये विधि जो है बहुत ज्यादा लाभकारी होती है छोटे किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए। इसमें खर्चे कम आते हैं। अगर आप इसका कास्ट निकालते हैं हर चीज, तो इसमें जो है 6 से 7 रुपए, ये डिपेंड करता है प्राइस और अवेलेबिलिटी ऑफ द एक्स्ट्रा, मतलब जो भूसा यूज करते हैं इसका प्राइस उस पे काफी हद तक निर्भर करता है। तो ये अगर भूसा 400-500 का होता है तो 4 से 500 रुपए में तैयार होता है। भूसा के कास्ट के बराबर ये तैयार होता है। इसके अंतर्गत जब ये आपका तैयार होता है तो क्वालिटी वाइज यह लगभग, जैसे अगर 10 कुंटल है तो इसे 25 मतलब कि 30 कुंटल, माने 28-30 डिपेंड करता मॉइस्चर पे, इतना कुंटल मतलब 1/3 3 टाइम्स इसकी कंपोस्ट तैयार होती है और क्वालिटी कंपोस्ट तैयार होती है। बट वी क्लेम 2.8 मतलब 28, अगर 10 कुंटल है तो 28 कुंटल कंपोस्ट पक्का तैयार होती है। इसकी जो उपज क्षमता है, हमारे यहाँ किसान जो है ये बिहार के कंडीशन में इस विधि को पूरी तरह से एडाप्ट कर लिया है और इसको हमारे यहाँ किसान कम से कम 2 बार खाद बना लेते हैं। अक्टूबर महीना में 2 बार बना लेते हैं। एक बार बना के फट से फर्स्ट वीक में उसको लगा देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन होता है कि किसान हैं उनको अनुभव भी है। और दोबारा 15 अक्टूबर के बाद लगाते हैं, मतलब खाद बनाते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे किसान भाई इस कंपोस्ट को, इस विधि से कंपोस्ट बनाते हैं, यह एक क्रॉस कंट्री, आपको एमपी में भी हमारे कुछ किसान हैं जो कि इसको ट्रायल किया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका ट्रायल करेंगे। बिहार के अलावा उड़ीसा में भी लोगों ने किया है, वेस्ट बंगाल में भी किया है। तो यह पाइप मेथड काफी परफेक्ट है। चूंकि थोड़ा सा मैं किसी प्रॉब्लम में, हॉस्पिटल से रिलेटेड दिक्कत में हूं, तो मैं बहुत बढ़िया सा इसको अभी नहीं कर पाया। फिर भी हमारा प्रयास है कि इसको मैं आपको दिखाया और चीज़ों को मैं चाहता हूं कि अगर ऑडियंस अलाउ करे तो मैं पाइप, कैसा पाइप चाहिए वो मैं प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। पाइप वहां पर कि कितनी लंबी पाइप होगी, बाकी प्रैक्टिकल तो अभी मैं नहीं करा पाऊंगा। उसमें है अक्टूबर में मैं मोस्टली करता हूं, लेकिन मई में हमारा एक प्रोग्राम होगा तो उसमें जो है हम आपको पाइप दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको हमारे किसान भाई कर सकते हैं। यू कैन डू इन ए बेटर वे। अभी किसान बिहार में क्या है कि वो पास्चराइज टनल नहीं बनाते हैं, लेकिन वो इस विधि से खाद बना के सालों भर खेती कंट्रोल यूनिट में कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए बिहार में करीब 50-60 लगे हैं कंट्रोल यूनिट, लेकिन उसमें से 15 के आसपास ऐसे हैं जिनके पास टनल नहीं है। दे आर यूजिंग द सेम मेथड एंड राउंड द ईयर दे आर प्रोड्यूसिंग द बटन मशरूम। तो हमारे जो प्रतिभागी हैं इसको देखें और मैं चाहता हूं कि आप स्लाइड यहाँ छोड़ के आप उसका पाइप देखें कि पाइप किस तरह से होती है। पाइप कैसे है, कहाँ आईडी आएगा, रुको
तो यहाँ पर आइएगा तब तो बनाइएगा। तो मैं जरा सा 2 मिनट यहाँ रोकता हूँ आपको, और पाइप दिखा के फिर से मैं वो कर रहा हूँ। आप इसको देखें और देख करके आप खुद बताएं, और इसमें कोई क्वेश्चन भी रहे, अभी बाकी चीजें हम करते रहेंगे। अभी आप पाइप को मैं दिखाता हूं कि कैसे पाइप कैसे चाहिए। पाइप दिखाया जाए, गोला पाइप है वहां पर, ये भी दिखाइए इसको। यहां रखे हैं ना पाइप, इसको लाइए। 2 मिनट आप देखें कि पाइप दिख रहा है सबको। हेलो, नहीं दिख रहा साहब। हाँ 1 मिनट, ये पिन कर रहा हूं उसको। या वहां नहीं, या इधर दिखाइए ना, मुंह दिखाओ पहले, कहां पर दिखाते हो? 1 मिनट। दिख रहा है? हाँ जी, हाँ सर। पाइप दिख रहा है? हाँ सर। अच्छा देख लीजिए। उसका नहीं सर, नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, दिख रहा है सर। हाँ सभी को दिखाने का प्रयास करता हूँ। दिख रहा है। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। सर आप पिन कीजिए एक बार। Everybody else, please put your microphones on mute. Hello, sir. हेलो, मजिद सर। हेलो मजिद सर, वो दयाराम सर का जो दूसरा स्क्रीन दिखा रहे हैं, आप उसको पिन कर दीजिए। नहीं सर, दिख रहा है। करने से कोई मसला नहीं है, वो आपको पिन करना है, सबको पिन करना है, ठीक है? नहीं, हम लोग बाद में अगर YouTube में देखेंगे तो ये स्क्रीन दिखाई नहीं देगा, इसीलिए बोल रहा हूँ। नहीं ये दिखाई देगा, ये दिखाई देगा। ओके ठीक है। आई स्टिल हैव पिन दैट, वो मैंने पिन कर लिया है, कोई बात नहीं। चलिए कोई नहीं है, जिनको नहीं दिख रहा है मैं अलग से भी दिखाऊंगा, बिना दिखाए मैं छोड़ूंगा नहीं। इसका होल देखिए, ये होल, ओके सर, होल डिफरेंस। ठीक है सर, एक दिन दिखाइएगा। Everybody else put microphones on mute. हेलो, Everybody else please put their microphones on mute. Dayaram sir, please unmute yourself. ओके। Yes sir, बोलिए। पाइप दिख रहा है, पाइप में ये होल है, डिस्टेंस देखिए आप लोग। इस तरीके से एक सीरियल लाइन में आपको करना है। Pocha, please put your microphone on mute. साबुत पाइप नहीं है टेक वाली। अरे सुभाष को क्यों नहीं बुला लेते? सुभाष को बुलाइए, बढ़िया पाइप दिखाओ ना तुम लोग। Dayaram sir, please unmute. एक मिनट सर, वो पहले पाइप जो है ना वो दिखाइए जो छेदी नहीं है,
फिर छेद वाली दिखाइए तो डिफरेंस समझेगा लोग। सुभाष जी। हाँ सर। हेलो। हाँ ये देखें सर ना, ये पाइप जो दिख रही है तो साबुत पाइप मैं चाहता हूं कि आपको दिखाऊं। ये देखिए कि पाइप में छेद है, 2 पाइप रखी हैं। थोड़ा लोगों को उसका डायामीटर जो है वो 4 इंचेज है। थोड़ा नीचे करो था, उसका डायामीटर दिखाओ शुभम। ये साबुत पाइप है, नई पाइप थी, क्या हो गई? नई पाइप वहां पर रखी थी, वो सब तो है, ये है। चलिए कोई नहीं है। तो ये आपको इसमें जो छेदा है आप देख लीजिए, ये जो 4 इंच पाइप इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है मुकेश जी, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये 4 इंच पाइप है, इसका मुंह दिखाइए। मुंह देखिए ये देखिए, ये इसका माउथ है, ये 4 इंच है। ये 4 इंच देख रहे हैं ना, ये चौड़ाई इसका 4 इंच है, लंबाई 10 फीट है। और अगर जितनी भी पाइप वहां रखिए और इसका छेदा देखिए, ये परफोरेटेड है। क्यों? क्योंकि जब ये उसमें रखा जाता तो इसके थ्रू गैस निकलती है। तो इसे हमें लगता है आप लोग समझ रहे हैं। और इसमें हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इसका और भी चीजें क्लैरिफाई थोड़ा सा कर ले, क्वेश्चन पूछ करके। आइए इसको वहां करिए तो, यहां दिखाइए तो थोड़ा। छोड़िए। तो इसमें ये देखो, सुनो, यहाँ बंद है साउंड, नहीं चल रहा, उसमें चल रहा है। हेलो, अच्छा यहाँ हमको दिखाइए तो, इसकी आवाज दिखाओ, उसको छोड़िए नहीं, यहाँ दिखाओ तो। हेलो। तो ये आप लोगों ने देखा कि कैसी पाइप चाहिए, इसका किस तरह से आपको करना है। बहुत सारी बातों को हम चाहते हैं कि आप इंटरेक्ट करें, और ये तैयार हो गया है। दूसरा मेथड है पास्चराइजेशन टनल, इसमें आपके बहुत सारे लर्नेड लोग इसमें लेक्चर देंगे। तो जो इसकी कंपोस्ट की क्वालिटी है, दोनों में डिफरेंस, मतलब स्टेटिस्टिकली डिफरेंस नहीं होता है। ये आपका टनल है। थैंक्स। तो मैं चाहूंगा कि हमारे ऑर्गेनाइजर से अनुरोध है कि वो इनवाइट करें इस पे थोड़ा डिस्कशन के लिए। Do you have any confusions or any inputs regarding the discussion? Please start. Sir, good morning. I am Dr. Madhu Gupta. I am guest faculty in Jiwali University, Gwalior, sir. जी गुड मॉर्निंग जी। I am also a grower of oyster mushroom in Gwalior, sir. जी जी। सर मेरा क्वेश्चन सर ये है, जब हम ये पाइप यूज करेंगे तो बिफोर और आफ्टर, जब हम सेकंड टाइम वी कैन रीयूज द पाइप ना सर, फॉर सेकंड टाइम ऑफ कंपोस्टिंग। जी जी। एक्चुअली क्या है जी सर, तो उसमें स्टरलाइजेशन पहले करेंगे ना हम फॉर्मेलिन से सर? नहीं, इसमें कुछ नहीं करेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जो पाइप लेंगे, तो आज पाइप 2 तरह की, एक अच्छी क्वालिटी की पाइप है, तो अच्छी क्वालिटी की जब पाइप लेंगे और उसके बाद में उसमें छेदा बना लेंगे और उसे हम एक बार यूज करेंगे। ठीक है, यूज करने के बाद दोबारा फिर हम यूज करेंगे तो वो पाइप मुड़ती नहीं। आजकल बाजार में घटिया क्वालिटी की पाइप आती है। तो अच्छा, अब आपका सवाल जो था कि स्टरलाइज इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये खाद हमारा पास्चराइज्ड होता है 70 डिग्री सेल्सियस पे। आपको याद होगा कि मैंने बताया पूरा सील्ड होता है। तो पूरा सील्ड होता है, तो एक राउंड में टेम्परेचर अप टू 70 पहुंचता है। जब मुंह खोलते हैं तो लगभग
40 के आसपास रहता है। फिर हम उसको जब पलटाई करते हैं फिर ढकते हैं, तो इस तरह से उसे स्टरलाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर ये उसका प्लास्टिक पाइप होते हैं ना सर? जी जी, इसके प्लास्टिक पाइप होते हैं। और दूसरी यानी थिकनेस और प्लास्टिक सर, मतलब उसकी थिकनेस कोई मायने रखती है क्या सर? उसका जो है, जैसे मार्केट में थिकनेस में ये चीज क्वालिटी होता 4 इंच डायामीटर का होना चाहिए, और 0.5 उसका ऐसे आता है, लेकिन कोई स्पेसिफाइड नहीं है। उसकी कंपनियां जो बनाती हैं, जैसे रिलायंस है, टाटा है, ये लोग प्लास्टिक की जो बनाती हैं तो क्वालिटी इनकी होती है। बाजार में घटिया वाली जो होती है वो आपको जब उसमें 70 डिग्री टेम्परेचर जाता है तो पिचक जाती हैं। आपको हम अभी पिचका हुआ भी दिखा सकते हैं। तो उसकी क्वालिटी वाइज आप लीजिएगा तो वो बहुत अच्छी होती है। तो सर इसके लिए जो ये कंपोस्टर के लिए स्पेसिफिकली आते क्या कोई सर पाइप के, ये जो मार्केट में अवेलेबल है? बोरिंग, अच्छा आप मैं किस इलाके से हैं, रहने वाले कहाँ के हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको आई एम फ्रॉम ग्वालियर सर। अच्छा ग्वालियर, तो वहां पर ये पानी निकालने के लिए पाइप कौन सी यूज होती है? सर यहाँ तो सीमेंट का होता है सर, और प्लास्टिक जो होती है सर वो बहुत थिन होती है, मतलब बहुत पतली प्लास्टिक वाले यूज होते हैं सर। अच्छा, तो वो फिर बहुत पतली जो होती है ना, वो 70 डिग्री पे पिचक जाती है। जी सर। पिचकना समझते हैं ना, वो yes, गलती नहीं है, लेकिन वो पिचक जाती है। तो सर। वो वाला नहीं लेना है, वो रहती है वो, लेकिन 0.5 मतलब सेंटीमीटर का, माने आधा सेंटीमीटर का वो होता है, काफी मोटा होता है और वो काफी चलता है। जी सर। अब ये डिपेंड करता है, चूंकि हम लोग बहुत स्पेसिफाइड इसलिए नहीं करते हैं कि आपको पता नहीं वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो डिपेंड्स ऑन एज पर एज यू आर प्रिस्क्राइबिंग और एडवाइजिंग। जी सर, व्हाट अबाउट कॉस्ट ऑफ सिंगल पाइप? कास्ट? यस सर। प्राइस? यस सर। प्राइस तो जो है ना, वो जो मार्केट में मिनिमम 500 है और मैक्सिमम 1200 माने 1200 है। वो डिपेंड कंपनी का करता है। ओके सर, योर प्रेजेंटेशन वाज वेरी क्लियर and very informative, so I am thankful to you sir for providing such kind of knowledge. Okay, थैंक यू मैडम। एक्चुअली मैं कुछ किसी दिक्कत में हूँ थोड़ा सा, तो मैं हूँ नहीं, इसलिए लेकिन आप हमारे नंबर को लेके ना, मैं 7 से 9 बजे कहीं भी बैठता हूँ ना, कहीं भी रहता हूँ तो ऑफिस लगाता हूँ, और ये कोई क्लैरिफिकेशन किसी भी दिन, संडे मंडे ट्यूसडे किसी भी दिन आप लोग कोई भी हमें 7 से 9 के बीच में कोई भी चीज बात कर सकते हैं। अगर ऑफिस में होता हूँ तो वीडियो कॉल के जरिए मैं आपको वो चीज दिखाता हूँ, दिखाने का प्रयास करता हूँ। और अभी हमारे 7 to 9 morning. I always available in the morning from 7 a.m. to 9 a.m. For the reply to the farmers or scientists or any technology. I am always available every day. So you are most welcome. Okay. नंबर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी सर ये मीटिंग फिर से होगी क्या? नहीं, ये मीटिंग नहीं होगी, मैंने बताया ना। नंबर थोड़ा डिस्प्ले कर दो तो। ये मीटिंग नहीं होगी। ये मीटिंग तो जो वहां से आपको जो जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, डॉक्टर ठाकुर एंड हिज ग्रुप, मैडम, लेकिन मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ और डेली मैं मशरूम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सलूशन को यहाँ से बताता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, चाहे फार्मर हो चाहे किसान हो। ऑफिस में 7 से 9 इसलिए रखा कि एवरीबॉडी इज फ्री, और यहाँ से मैं चीजों को ना, चूंकि हमारे यहाँ वेल इस्टेब्लिश्ड लेबोरेटरी, वेल इस्टेब्लिश्ड एवरीथिंग इज देयर, तो मैं लोगों को उससे अवगत कराता हूँ, बताता हूँ कि ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, किसी की कोई दिक्कत है, क्योंकि बिहार में काफी अच्छा काम चल रहा है और ये टेक्नोलॉजी हर जगह। नंबर मिलेगा प्लीज?